Good morning, class 12th. Today we learn how to solve the questions based on networking chapter. These questions are important for 4 marks to 8 marks in your board examination. So first question is TTC is a professional consultancy company. The company is planning to set up their new office in India with its hub at Hyderabad. As a network advisor, you have to understand the requirement and suggest them the best available solution. Okay, there are 4 queries based on this. So, what is given to us? First, it is given the physical location block of TTC. That is, they are having 3 blocks. First one is human resource block, second one is conference block, and third one is the finance block. After that, it is mentioned that what is the distance between all these blocks. First is the distance between human resource to conference. This is the difference. Distance between this is 110. Okay, next is human resource to finance. Okay, block, this is 40, and finance to conference is 80. These are the distance that is mentioned. Next it is given the block and the number of computers they are having. First is human resource block, it is having 25 computer, finance is having 120, and conference is having 80 computers. First question, which will be the most appropriate block where TTC should plan to install their server? So सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है, हम सर्वर वहाँ इंस्टॉल करते हैं जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे. सो इन दिस कंपनी जो हमारे पास फाइनेंस ब्लॉक है, दिस ब्लॉक, इसमें कितने कंप्यूटर्स हैं? 120 कंप्यूटर्स हैं. सो दिस ब्लॉक इज सेलेक्टेड टू प्लेस द सर्वर. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, द आंसर फॉर फर्स्ट वन इज finance block. Okay, next question is draw a block to block cable layout to connect all the buildings in the most appropriate manner for efficient communication. Okay, हमें क्या करना है? केबल लेआउट कनेक्ट करना है. तो केबल लेआउट जब हम कनेक्ट करते हैं, इन दैट केस हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमारी कम से कम केबल ख़त्म हो. ये इसलिए क्योंकि जब केबल की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो बीच में नॉइज़ ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए आप केबल लेंथ को इम्पोर्टेंस देते हैं. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स से इसके बीच का डिस्टेंस है 110. ओके, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को कॉन्फ्रेंस ब्लॉक से और ह्यूमन रिसोर्स को फाइनेंस से कनेक्ट करते हैं तो द टोटल डिस्टेंस इज 110 प्लस 40, दैट इज़ 150. ओके, नेक्स्ट, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक को कॉन्फ्रेंस से करते हैं दैट इज़ 110, और कॉन्फ्रेंस ब्लॉक को फाइनेंस ब्लॉक से कर देते हैं दैट इज़ 110 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 190. ओके, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं. नेक्स्ट चेक करते हैं, हम फाइनेंस ब्लॉक को ह्यूमन ब्लॉक से कनेक्ट करते हैं और फाइनेंस ब्लॉक को ही कॉन्फ्रेंस ब्लॉक से करते हैं. इट मीन्स इसको यहाँ से, तो डिस्टेंस चेक कर लेते हैं. दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 80, तो 80 प्लस 40 120. दिस इज़ द मिनिमम लेंथ. पहली वाली हमारे पास थी 150, सेकेंड वाली 180 के अप्रॉक्स. ओके, 180 और 190, सॉरी, first one we are having 150, second we are having 190, and third one is we are having 120. So we go for 120, that is, this is the block diagram, block connection. Next is, what will be the best possible connectivity out of the following? You will suggest to connect the new setup of office in Bangalore which is in London based office. ठीक है, सो हमें क्या करना है? कनेक्टिविटी करनी है. कहाँ से कहाँ के बीच में? एक ऑफिस आपका लंदन में है, दूसरा आपके पास बेंगलुरु में है. इन दोनों के बीच में कनेक्शन सेटअप करना है. ठीक है, तो ईथरनेट एंड इंफ्रानेट जो आपके पास ऑप्शंस हैं
वो वर्क नहीं करेंगे. फॉर दिस वी गो फॉर सैटेलाइट लिंक. नेक्स्ट इज which of the following device will be suggested by you to connect each computer in each building. तो एक और चीज़, अगर हमें सारे कंप्यूटर में कोई डिवाइस कनेक्ट करनी है सब बिल्डिंग्स में, तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्विच. स्विच जो है आपकी नेटवर्किंग डिवाइस, वो सारे सिस्टम्स में कनेक्ट होगी. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग. Next, we are having another consultants are setting up a secure network for their office campus at Faridabad for their day-to-day office and web-based application activities. They are planning to have connectivity between three buildings and the head office situated in Kolkata. Answer the following questions 1 to 4 after going through the building position in the campus and the other details which are given below. So first उन लोगों ने क्या दिया है हमें? They have given the distances between the buildings. तो बिल्डिंग रवि और जमुना के बीच में कितना डिफरेंस है? 120 मीटर. रवि एंड गंगा के बीच में 50 मीटर्स. गंगा एंड जमुना के बीच में 65 मीटर्स. फरीदाबाद कैंपस टू हेड ऑफिस 1460 किलोमीटर. नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, number of computers. Building Ravi 25. Let's draw a diagram. We are having Ravi, this is one block, this is Jamuna, okay, and this is Ganga. These are the three buildings and we are having Faridabad campus to head office. ठीक है. This is our head office and this is our Faridabad campus. ओके. सो रवि टू जमुना, इसके बीच का डिस्टेंस आपका होगा 120 मीटर्स. रवि से गंगा, दिस इज 50 मीटर. अगेन गंगा से जमुना, दिस इज 65 मीटर. सो यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड गंगा एंड जमुना इज लेस देन अदर. आप क्या करेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको लेआउट सेटअप करना है विद द हेल्प ऑफ अ केबल, तो आप हमेशा मेजर करेंगे कि किसके बीच का डिस्टेंस कम होगा. ऐसा डिस्टेंस जिससे तीनों के तीनों ऑफिसेस, 3-4 जो भी ऑफिसेस कनेक्ट करने हैं सारे ऑफिसेस भी कनेक्ट हो जाएं और मिनिमम अमाउंट ऑफ केबल आपकी ख़त्म हो. नेक्स्ट, वन मोर थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन ईच बिल्डिंग, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा जिस भी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होंगे वहीं पे हमारा सर्वर प्लेस्ड होगा. ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमनली आते हैं, लाइक स्विच हमें हर कंप्यूटर में हर बिल्डिंग में इंस्टॉल करना है, सर्वर हमें वहाँ इंस्टॉल करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होंगे, प्लस जब हमें लेआउट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ द केबल, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर ऑफ़ केबल, हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ केबल ख़त्म होगी, हम वो यूज़ करेंगे. ओके. नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन. फर्स्ट, सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल प्लेस, दैट इज ब्लॉक, टू हाउस द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो गिव अ रीज़न टू जस्टिफाई और सजेस्टेड लोकेशन. सो हमारी लोकेशन क्या होगी? जमुना, बिकॉज इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. ओके. नेक्स्ट, सजेस्ट अ केबल लेआउट फॉर कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग्स. अगेन हमसे क्या पूछा गया? केबल लेआउट पूछा गया है. तो केबल लेआउट क्या है? आपको, आप जो रवि ब्लॉक है इसको गंगा से कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा गंगा ब्लॉक है इसको हम जमुना से कनेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास डिस्टेंस होगा 50 प्लस 65. ओके. This is the minimum distance. Next question. Suggest the placement of the following devices with justification. Switch हम सारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करेंगे. ओके. नेक्स्ट वन इज रिपीटर. हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे हमारा डिस्टेंस 100 मीटर से
ज़्यादा होता है। सो वाइल कनेक्टिंग रवि टू गंगा एंड गंगा टू जमुना हमें ये सब रिपीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हेन वी कनेक्टिंग रवि टू जमुना, अगर इन केस हमने कोई ऐसा सेटअप लिया जिसमें हमें रवि और जमुना को कनेक्ट करना पड़ेगा, in that case we can place the repeater between them. Next is the organization is planning to providing a high speed link with its head office situated in the Kolkata using a wired connection. Using a wired connection, which of the following cable we will be most suitable for this job? हमें क्या करना है, हाई स्पीड लिंक प्रोवाइड करना है हेड ऑफिस में। तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? वी यूज़ कोएक्सियल केबल। Students, for all this you have to read the question notes that are provided to you, ताकि आपको ये पता चल जाए where we have to use coaxial cable, where we have to optical fiber कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, दोनों के रेट्स में क्या डिफरेंस है। हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा महंगी पड़ती है कोएक्सियल केबल के कंपैरेटिवली, उसको मोड़ना मुश्किल होता है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, ट्विस्टेड पेयर कब यूज़ करना है एंड बाकी सारी चीज़ें। तो इसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे कि स्विच क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है, ब्रिज क्या है, रिपीटर्स क्या है, ठीक है। लैन मैन वैन इन सब चीज़ में जो भी डिफरेंसेस है, यू हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और ये एक और चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करनी है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बाकी आपको लिंक भेज दूँगी फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड मोर एग्जाम्पल्स। इफ़ यू विश टू सॉल्व द इन योर नोटबुक तो आप उसमें सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू क्लास।